Good morning to all of you. I'm Isha Gohil, Assistant Professor, Department of Psychology, Padma Shri Padma Sachdev, Government College for Women, Gandhinagar, Jammu. And I'm going to present a lecture on the topic Understanding Perception. Now, before we understand what perception is, we must understand the term sensation, because sensation is the raw material which gives rise to perception. Now, what is perception? What is sensation? Basically, we all know that there are 5 sense organs and there are 2 deep senses jahan se, from where we get information. So all the information which is being received by the sense organs is basically sensation. And we are always taking lot of information from our environment. And when we attach meaning to that sensation, that becomes perception. So basically, what is perception? Perception is the process of organizing and interpreting information, enabling us to recognize meaningful objects and events. It is the way how we understand a sensation in a meaningful way. For example, we are sensing lot of things. Like we have different senses, like we have eyes, different sense organs. We have eye to see, then ear to hear. So we have different, we are sensing so many things. We are attending to so many things. But if we attach meaning to those things, only then it will transform into perception. For example, this is the mouse, if I take an example. And अगर मैं सिर्फ सेंसेशन की बात करूं, I can sense that it is a thing, like कुछ है ब्लैक कलर का, कोई सॉलिड सी चीज है. But and I'm sensing it, like my tactile sensation which is related to the skin, that is the sense of touch. तो I can touch it and I can feel that ये इसका कुछ इस तरह का texture है, कुछ कहीं से smooth है, कहीं से it is like कहीं से इसमें light है. I can sense this thing. ठीक है, with my eyes I can see that there is a red light also coming. So ये चीजें हैं जिससे मैं sense कर रही हूँ. But why do I know that it is a mouse? It is because of the perception. So I can sense it, but because of my knowledge and my experience with this thing, I am familiar कि इस तरह की चीज को mouse कहते हैं. I can sense it कि ये एक चीज है. जिसको ये नहीं पता है उसके लिए अभी भी वो sense तो कर पाएगा, लेकिन वो इसको perceive नहीं कर पाएगा. उसके साथ में the person will not be able to attach the meaning that it is a mouse. So I can sense it, I'm sensing it, but if I attach meaning to it, I am putting some meaning in it, I am trying to interpret it, I'm trying to understand my sensation, and that sensation gives rise to perception. And because I'm sensing something like this now, because of my experience with this thing, I know that it is a mouse. So basically, sensation, what is perception? It is the process, it is the way we understand our perceptions or give meaning to our perception. So जिस चीज के साथ हमारी नॉलेज होगी, सेंस तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जिन चीजों के साथ भी हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अटैच होगा या एसोसिएटेड होगा, या वो चीज हमारी ऑलरेडी मेमोरी में है, हमारा उसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है, उसी तरीके से ही उसी के बेसिस पे ही हम उस चीज को परसीव कर पाएंगे. सेंसेशंस जो है वो तो चल रही हैं, देयर आर सो मेनी साउंड्स कमिंग, देयर आर सो मेनी विजुअल इमेजेस वी आर सीइंग. तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम उसके साथ में मीनिंग अटैच करते हैं, इट बिकम्स perception. It becomes perception, and most of the time we talk about visual perception, and here the topic also concerns with visual perception, the perceptions which we actually जो perceptions हमारी, हम अपनी आंखों को यूज करते हैं, अपनी विजन की सेंस को यूज करते हैं, हम आज उसी perception के बारे में बात करेंगे, that is visual perception. And the first topic which is under it is perceptual constancy. So as we see around, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमारे आगे पीछे बहुत सारा स्टिमुलस होता है. and if we are familiar with a person, for example if you are familiar with your friend, ठीक है, आपकी एक फ्रेंड है और वो, you are familiar with the height and size of your friend, और आपकी एक फ्रेंड जो है वो बहुत दूर से आपको वेव कर रही है, एंड आपको आपकी जो रेटिना पे जो पहली इमेज हमारी बनती है, दैट इज ऑन द रेटिना, आईज के ऊपर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वो आपको आपकी फ्रेंड ये 2 उंगलियों के बीच में दिखेगी, कि वो इतनी छोटी सी आपको आपकी फ्रेंड दिखेगी. बट क्या वो इतनी छोटी सी है? नहीं. इट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन यू कैन मेक आउट कि आपकी फ्रेंड इतनी छोटी सी नहीं है, वो 5 फुट 4 इंच की है, और
उसकी हाइट और साइज का आप उसको परसीव कर सकते हो और आप उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो. इट इज बाय बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो परसेप्शन चल रहा है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेटिनल इमेज. तो हमारी जो जो परसेप्शंस होती हैं दे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इंस्टेड अगर किसी इंसान का शेप या साइज आपको विद डिस्टेंस चेंज होता हुआ नजर भी आ रहा है, बट बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन, तो आपको पता है कि इसका एक्चुअल साइज या इसका एक्चुअल वेट या इसकी एक्चुअल हाइट या एवरीथिंग रिलेटेड टू उसके जो फीचर्स हैं वो आपको पता है. सो यू आर एबल टू परसीव. दिस इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. सो इवन इफ द रेटिनल image changes but the perceptions remain constant, and it is known as perceptual constancy. So objects change in our eyes constantly as we or they move, but we are able to maintain constant perception. So we are able to recognize them, and it is because of the constancy, that is the perceptual constancy. So there are basically three types of constancies. एक है shape constancy, second is size constancy, and the third one is brightness constancy. So if we talk about shape constancy, as I already told you कि आपका friend आपसे कितनी भी दूर होगा, अगर वो आपको बहुत छोटा भी दिख रहा है, still आपको पता है कि उसका shape and size कितना है. So that is आपको उसके साइज का अंदाजा है, उसकी हाइट का अंदाजा है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अ ट्रे, आप एक फ्रूट ट्रे आपके डाइनिंग टेबल पे पड़ी है एंड यू एंटर बिकॉज यू नो द ट्रे पड़ी है, फ्रूट ट्रे पड़ी है. तो आप जब एंटर होंगे रूम में तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल से ही वो ट्रे दिखेगी, उसका शेप थोड़ा अलग दिखेगा. बट आप चाहे जितने मर्जी एंगल्स चेंज कर लीजिए, आपके रेटिना पे उसकी एक अलग ही शेप बनेगी. बट बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दैट फ्रूट ट्रे एंड यू आर सीइंग इट एवरी डे, तो उसकी एक इमेज आपने उसको परसीव किया दैट दिस इज द फ्रूट ट्रे. तो आपको उसकी शेप की जो जो उसकी शेप का परसेप्शन है दैट इज ऑलरेडी इन योर माइंड कि उसकी क्या शेप है, तो आप उसको परसीव कर सकते हैं एंड यू नो दैट द परसेप्शन विल रिमेन कांस्टेंट. और आपके दिमाग में वो जो परसेप्शन है regarding the shape of that fruit tray, it will remain completely same. Fine. Then the third thing which is that is brightness constancy, और हम इसको color constancy भी बोल सकते हैं. For example, we all know कि हमारे कमरे का कलर अगर white है या आपके कमरे का कलर अगर white है, तो आपको पता है walls are white, ठीक है, और एक दिन आपने उसमें बल्ब चेंज करके रेड बल्ब या एलईडी लगा दिया. सो यू नो दैट आपका कमरा वाइट है, लेकिन जब आप अंदर एंटर हुए हैं तो कमरा जो है वो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, वॉल्स आपको लाल रंग की दिखाई दे रही हैं. आपकी रेटिना पे रेड वॉल्स की इमेज बन रही है, बट क्योंकि आप फैमिलियर है, आप उसी कमरे में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, तो यू नो दैट वो व्हाइट कलर की ही वॉल्स हैं. दिस इज नोट एज कलर कॉन्स्टेंसी या फिर ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. सो द रेटिना हैव डिफरेंट इमेज बट द परसेप्शंस ऑफ दैट वॉल विल रिमेन टोटली सेम. उसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट कोल, अगर मैं कोयले की बात करूं, चाहे आप उसको सन में रख दें वो आपको बहुत ही ब्राइट दिखेगा, बट वो चाहे जितना मर्जी ब्राइट दिखे और उसके ऊपर ह्यूज भी आपको ब्राइटनेस के दिखाई दें दैट इट इज शाइनिंग, बट अल्टीमेटली यू नो दैट इट इज ब्लैक इन कलर. सो दिस इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी बिकॉज योर परसेप्शंस अबाउट that coal will remain totally same even though your proximal stimulation whatever stimulus you are getting जो उस टाइम आपको मिल रहा है अपने एनवायरनमेंट से, वो जो है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन आपकी परसेप्शन ये कहती है कि कोयला जो है वो काले रंग का ही होता है बिकॉज आपको इसके साथ में प्रॉपर एक्सपीरियंस है. सो दिस इज नोन एज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एंड विजुअल परसेप्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड जो भी चीजें हम आगे पीछे रिकॉग्नाइज करते हैं लोगों को, उनकी शेप एंड साइज वो क्यों कांस्टेंट रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस mechanism which is taking place inside our brains, and that is perceptual constancy. Now the second thing in this is depth perception. Now what is depth perception? हमें पता है कि हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर एक फ्लैट स्क्रीन है और उसमें हमें सिर्फ 2D इमेज दिखती है, 2 डायमेंशनल, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि हम थर्ड डायमेंशन दैट इज डिस्टेंस उसको भी हम परसीव कर लें. दैट इज नोन एज डेप्थ परसेप्शन. Now, what is depth perception? Basically, depth perception is the visual acuity to perceive the third dimension in the space. ठीक है, to perceive the distance from your own body as a reference surface. ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने सीढ़ियां कितनी उतरनी है, आपको डिस्टेंस का अंदाजा है कि सीढ़ियों की आप बहुत कम बारी ऐसा होगा कि आप सीढ़ियां उतरते टाइम गिर मतलब एकदम से जैसे आपको लगे कि आप गिरने लगे हैं,
तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको डिस्टेंस का अंदाजा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टेयरकेस से उतर रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, इफ यू आर एन एक्सपर्ट ड्राइवर, सो यू नो द कि आपको कितना डिस्टेंस रखना है एक दूसरी गाड़ी से। दैट इज बिकॉज ऑफ द डेप्थ परसेप्शन। आपको डेप्थ का अंदाजा है। डेप्थ इज बेसिकली डिस्टेंस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्थ परसेप्शन जो है वो बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग्स करते हैं, वो लोग अपने पेंटिंग्स में डेप्थ या डिस्टेंस शो करने के लिए जो है डेप्थ परसेप्शन के जो क्यूज हैं उनका यूज करते हैं, ताकि वो पिक्चर में डिस्टेंस शो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर गलियां दिखानी है कि गली जो है वो बहुत बड़ी गली दिखा रहे हैं, तो उसमें भी वो दे यूज दोज पिक्टोरियल क्यूज, जिनको जो वो यूज करते हैं, जिससे हमें लगता है कि अरे गली बहुत लंबी है और बहुत दूर जा रही है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी ये यूज करते हैं। एंड इन अवर एवरी डे टू डे लाइफ हम डेप्थ परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली वी आर एबल टू परसीव द थर्ड डायमेंशन, दैट इज डिस्टेंस। सो व्हाट इज डेप्थ परसेप्शन? एबिलिटी टू सी थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड टू एक्यूरेटली जज डिस्टेंसेस। नाउ हम ये कैसे जज करते हैं, कैसे परसीव करते हैं डेप्थ परसेप्शन को? हम इसमें यूज करते हैं डेप्थ क्यूज। एंड डेप्थ क्यूज जो हमारे होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले डेप्थ क्यूज होते हैं क्या? फीचर्स दैट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस एंड स्पेस। ठीक है, दे आर दी डेप्थ क्यूज. As the human retina is basically just a flat screen, as I already told you, on the inside of the eye, it can only receive information in two dimensions, these being height and width. Height and width की सिर्फ हमको पता है कि जो हमारी आई पे पड़ता है वो सिर्फ हाइट एंड विड्थ से रिलेटेड होता है, दैट इज टू डायमेंशन. Human experience, however, tells us that the world is three dimensional. So we experience both distance and depth in our personal environment. So where does this third dimension come from? इस तीसरी डायमेंशन का कैसे हमें पता चलता है? Put simply, our perceptual process is created by interpreting information from two types of depth cues. These are binocular and monocular depth cues. To perceive binocular depth cues, you must have two eyes, while only one eye is needed for the perception of monocular cues. So basically mono means one, and ocular means eyes. Bi means two, and ocular means eyes. तो बेसिकली मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज जो है ये डेप्थ परसेप्शन को परसीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। और बाइनोक्यूलर क्यूज जो होते हैं ये बेसिकली दे आर इनेट, दे आर फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इन नेचर। एंड मोनोक्यूलर क्यूज जो होते हैं वी लर्न इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, जिनको हम पिक्टोरियल क्यूज भी बोलते हैं, एंड दे आर बेसिकली लर्नड। तो बाइनोक्यूलर क्यूज जो है वो हम लेके पैदा होते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज जो है वो हम सीखते हैं। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस वर्ल्ड के साथ में होता रहता है, वैसे वैसे हम ये सीखते रहते हैं। Although both types of cues are presented separately in this resource, in reality they all work together. Basically सिर्फ समझाने के लिए ये अलग रखे गए हैं, लेकिन बेसिकली ये सब साथ में ही काम करते हैं। सो बाइनोक्यूलर में जो है उसमें रेटिना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आईज का, दैट इज वाई इनको बायोलॉजिकल कहा जाता है। और मोनोक्यूलर जो है वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल या पिक्टोरियल क्यूज इनको कहा जाता है। फाइन। सो देर आर लॉट ऑफ मोनोक्यूलर क्यूज जो कि हम यूज करते हैं और जिनसे कि हम डेप्थ का अंदाजा लगाते हैं। इसमें है पहला सुपर इम्पोजिशन, सेकेंड इज रिलेटिव साइज, तीसरा है हाइट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन इज लीनियर पर्सपेक्टिव, देन इज टेक्सचर ग्रेडियंट, एंड द लास्ट वन इज मोशन पैरालैक्स. द फर्स्ट वन इज सुपर इम्पोजिशन और ओवरलैप, जिसको हम इंटरपोजिशन भी बोलते हैं. तो इफ आप अगर आप देख सकते हो इस इमेज को, तो ये जो पेड़ आगे है ये हाइड कर रहा है पीछे की बिल्डिंग के कुछ पार्ट को. So we assume that the tree is in front of the house because it obscures our view of it. It is superimposed on the front of the house, so it overlaps it. इस पिक्चर से हमें ये पता लग रहा है कि जो बिल्डिंग है वो थोड़ी दूर है और जो ट्री है वो थोड़ा सा पास है. इससे हमें डिस्टेंस का पता लग रहा है, डेप्थ का पता लग रहा है. जैसे दूसरे पिक्चर में आप देखोगे जो टीचर है वो बोर्ड के आगे खड़ी है. सो बोर्ड जो है, बोर्ड का कुछ पार्ट जो है वो हाइड हो रहा है. तो जो टीचर है वो थोड़ी सी पास है और बोर्ड जो है वो थोड़ा सा दूर है. इससे हमें डेप्थ का पता चल रहा है. लाइकवाइज वी नो द ट्यूटर इज नियरर टू अस देन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज शी ऑब्स्क्यूर्स ओवरलैप्स अ पोर्शन ऑफ इट. इसी तरीके से आप ये देख सकते हो इंटरपोजिशन, इसको हम इंटरपोजिशन भी बोलते हैं. व्हेन वन ऑब्जेक्ट पार्टली ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ अनदर, यू परसीव द पार्टली जो पार्शली ब्लॉक्ड ऑब्जेक्ट है फार्दर अवे. जो चीज किसी चीज को ढक रही है वो हमसे पास है, जो चीज ढकी जा रही है वो हमें लगता है कि वो, लगता नहीं वो होता ही, वो वी परसीव द डेप्थ आउट ऑफ इट. देन नेक्स्ट इज रिलेटिव साइज.
सो व्हेन वी व्यू टू ऑब्जेक्ट्स वी नो देम टू बी ऑफ द सेम साइज. अगर आप ये देखोगे तो ये चेस के चेक बोर्ड हैं, तो अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको सेम साइज के लग रहे हैं, आपके परसेप्शन सेम है, बट यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा लग रहा है. वाई? बिकॉज उनका जो डिस्टेंस है वो दूरी पे है. तो जो चीज पास होगी वो हमें बड़ी दिखाई देती है, जो चीज दूर होगी वो हमें छोटी दिखाई देती है. लेकिन क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों सेम साइज के, हमारी परसेप्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो वी कैन मेक आउट कि ये सिर्फ डिस्टेंस इनका दूर है, इनकी हाइट छोटी नहीं है, या इनका शेप अलग नहीं है, या साइज छोटा नहीं है. अगर आप नीचे देखो, नीचे वाली पिक्चर में टैंक्स खड़े हुए हैं, तो टैंक जो सबसे आगे वाला है वो सबसे पास है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, डिफाइंड दिखाई दे रहा है. वी डोंट इंटरप्रेट दिस पिक्चर एज वन लार्ज टैंक फॉलोड बाय स्मॉलर व्हीकल्स. हमें पता है पीछे भी टैंक्स ही हैं, वो स्मॉल इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस हमसे दूर जाता जा रहा है, दैट इज वाई. देन नेक्स्ट इज रिलेटिव साइज में ही, जैसे आप देख रहे हो कि ये बोटिंग कर रहे हैं, और आगे वाला जो है जैसे लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर परसीव्ड एज बीइंग क्लोजर टू द व्यूअर, एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज बीइंग फादर अवे. जो पास में बोटिंग कर रहा है वो हमें डेफिनेटली थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो पीछे बोटिंग कर रहा है इससे हमें डिस्टेंस का पता चल रहा है. देन इज लीनियर पर्सपेक्टिव. अब जब रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ट्रैक पे खड़े होके, तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं जो ट्रैक पे होती हैं, उसी के ऊपर ट्रेन मूव करती है. तो जब वो आगे आगे जाती जाती है और ऐसे लगता है जैसे कि अर्थ एंड स्काई इज मीटिंग टुगेदर, तो वो ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जाके जुड़ रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है. इट इज ओनली इन अवर रेटिना कि हमें लग रहा है वो जुड़ रहे हैं, हमारी आंखों पे जो इमेज बन रही है उसको हमें लगता है कि जुड़ रहे हैं, बट अदरवाइज वी नो दैट ये रेलवे ट्रैक है और ये टू पैरेलल लाइंस ही हैं. हमें लगता है कि दे आर कन्वर्जिंग ऑन सम पॉइंट, बट एक्चुअली दे आर नॉट. तो ये इस तरह की जैसे लीनियर पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ये पेंटर्स जो हैं या आर्टिस्ट जो हैं वो यूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स में, तो टू डेप्थ को दिखाने के लिए, ठीक है, टू शो डेप्थ इन देयर पेंटिंग्स. तो parallel lines converge in the distance, so the further away the lines are from the observer, the closer together they will appear. This fact was discovered and it was used by Renaissance artists to great effect. जैसे ये भी आप देख सकते हो, लीनियर पर्सपेक्टिव का एक और एग्जांपल रेलवे ट्रैक शो किया हुआ है. देन दिस इज लीनियर पर्सपेक्टिव. एज यू कैन सी इट इज अ प्लेटफॉर्म, और वहां से ट्रेन का ट्रैक है, और वो बेसिकली हमें लग रहा है कि वो कन्वर्ज कर रहा है, और कहीं पॉइंट पे जैसे आप ये देख सकते हो ये लग रहा है ये पॉइंटेड है, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉइंटेड. वी नो our perceptions are constant, that they are parallel lines. Then next is texture gradient. Now, here the grain or texture appears to become finer as distance increases. For example, if you are standing on ग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, छोटे छोटे पेबल्स पड़े हैं, तो जब आप वहां पे खड़े हो, तो आप उन पेबल्स के ऊपर जब खड़े हो, और दूर तक पेबल्स ही पेबल्स हैं, छोटे छोटे जैसे कंकर पड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे जहाँ पे आप खड़े हो, जितने वो पास हैं, तो जब वो आपके नीचे ही हैं तो वो डिफाइंड है, मतलब एक एक कंकर आपको डिफाइंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, उनका कॉन्टोर, उनके एजेस, एवरीथिंग इज डिफाइंड, उनकी बाउंड्रीज जो है, बॉर्डर डिफाइंड है वो. लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं पेबल्स, तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि कोई फाइन हो गए हैं, बिल्कुल कारपेट जैसे बिछा होता है. तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये डेप्थ है, डिस्टेंस का पता चल रहा है. खड़े हो जितना पास है, एक एक पेबल अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना जब आप डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो दूर वाले जो पेबल्स हैं वो आपको कैसे दिखाई देंगे, जैसे कि कोई कारपेट बिछा होता है. तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये टेक्सचर ग्रेडियंट का एग्जांपल है. जो फ्लावर्स जो पास में है, वो आपको एक एक फ्लावर डिफाइंड दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो फ्लावर्स जो हैं वो दूर चले गए हैं, येलो एंड रेड और ये ग्रीन, तो वो ऐसे लग रहा है कारपेट बिछा हुआ है, और दूरी के ऊपर, बहुत दूरी के ऊपर एक कारपेट फाइन दिखाई दे रहे हैं. तो इससे इस ये जो फाइननेस आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि वो दूरी पे हैं, इसीलिए वो डिफाइंड नहीं दिखाई दे रहे. देन नेक्स्ट इज मोशन पैरालैक्स. नाउ दिस इज द ओनली मोनोकुलर क्यू जिसमें हमें मूवमेंट की जरूरत होती है. व्हेन यू राइड इन अ मूविंग व्हीकल एंड लुक एट द साइड विंडो, द ऑब्जेक्ट्स यू सी अपीयर आउटसाइड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. तो आप लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप खिड़की से बाहर देखें, तो जो चीजें आपके पास से गुजर रही हैं वो आपको लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, उल्टा जा रही हैं आपसे, ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट सीम टू बी मूविंग इन डिफरेंट स्पीड्स, उनकी स्पीड भी आपको अलग लगती है. जो तो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं, ठीक है, वो आपको स्लोली मूव करते हुए दिखाई देंगे. जैसे दूर खेतों में आपको कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ट्रीज, तो वो, या घर दिखाई दे रहे हैं, तो वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो मूव नहीं कर रहे. और जो पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पास पास से
निकल के रोड साइड से निकल रही हैं चीजें, वो आपको बहुत स्लो लेके, बट एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग. सो दिस इज दी ओनली मोनोक्यूलर क्यू जिसमें हम यूज करते हैं. इसमें मूवमेंट का यूज है. इस मोनोक्यूलर क्यू या मतलब परसीव करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसी में आप ये परसीव कर सकते हैं. तो जैसे कि ये दिखाया हुआ है पिक्चर में. एंड द लास्ट मोनोक्यूलर क्यू इज लाइट एंड शैडोज. तो लाइट शैडो कहाँ पे पड़ रही है उससे भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी शेप आपको चेंज दिखाई देती है. इफ द शैडो इज एट द बॉटम, एज यू कैन सी, ये वाले ए वाले पिक्चर में अगर शैडो बॉटम में पड़ रहा है, द ऑब्जेक्ट लुक्स कन्वेक्स. तो वो कन्वेक्स दिखाई दे रहा है. कन्वेक्स मतलब इस तरह का कन्वेक्स. और अगर शैडो ऊपर पड़ रही है, जैसे आप बी में देखो, तो वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है. वो कैसे दिखाई दे रहा है? कनकेव. तो लाइट एंड शैडोज भी हमारे को डेप्थ का जो है वो पता लगाता है. तो लाइट एंड शैडोज भी आप डाल के डेप्थ को क्रिएट कर सकते हो अपनी इवन पेंटिंग्स में भी. Then next, the brain takes both images, they put them together and uses the slight differences between them to create a perception of depth. तो अब हम बात करेंगे बाइनोक्यूलर क्यूज के, जो कि हमारी आईज से रिलेटेड है, हमारे रेटिना से रिलेटेड है. सो ये जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे जो है दो हमारी आंखें हैं जो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से उनकी स्पेसिंग हुई हुई है. दोनों आंखों पे ऊपर लेफ्ट एंड राइट में दोनों में एक अलग इमेज बनती है. इमेज सीन बाय द लेफ्ट आई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इमेज सीन बाय द राइट आई. मतलब राइट आई और लेफ्ट आई की इमेज में फर्क होता है. दिस मीन्स दैट द ब्रेन रिसीव्स टू स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द सेम सीन. एक चीज को अगर आप देखोगे, अगर आप कभी देखो अपनी आंख बंद करके, तो आपको अलग अलग एंगल्स पे चीजें दिखाई देंगी. अगर आप लेफ्ट आंख बंद करोगे और सामने का ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो अलग दिखाई देगा. राइट आई बंद करोगे तो सामने जो सेम ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका आपको एक अलग, इवन आपको उसकी पोजीशन भी चेंज दिखेगी कि वो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर हुआ है. दिस इज बेसिकली retinal disparity. So image created by the left eye and the image created by the right eye are totally different. ठीक है. Now we talk about binocular convergence. There are two muscles जो हमारे रेटिना पे होती हैं जिनको हम सीलरी मसल्स बोलते हैं. फाइन. जब कोई चीज हमारे बिल्कुल पास आती है और अब हम उसको व्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो हमारी सीलरी मसल्स होती हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं अंदर की तरफ. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं बाइनोक्यूलर कन्वर्जेंस. जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो हमें स्ट्रेन कम पड़ता है और हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं. इससे भी क्लोजनेस एंड डिस्टेंस का पता चलता है. Okay, there are two major binocular depth cues. These are convergence and retinal disparity. This acts like a range finder to tell us how far away an object is. If an object is distant, our eyes look straight ahead. However, as the object gets nearer, our eyes swivel inwards, converge to keep the object in focus. कभी कभी बच्चे जो हैं वो पेंसिल लेके जो है मूव करते हैं अपने नोज के आगे पीछे. तो जब आप पेंसिल रख के मूव करते हैं, उसको अपने बिल्कुल पास लाओगे तो आपको स्ट्रेन महसूस होता है अपनी आईज में. इट मीन्स द पेंसिल इज क्लोजर टू यू. जब आप उस पेंसिल को दूर करते जाओगे तो आपको वो स्ट्रेन कम लगेगा. वो प्रेशर जो आपकी सीलरी मसल्स ने बिल्ड किया है वो रिलैक्स हो जाती है एकदम से. So the brain measures the amount of convergence to provide us with a rough estimate of distance. Fine, तो इससे हमें distance का पता चल जाता है. Now the next topic which is under perception is we will talk about Gestalt psychology or form perception. So the German word Gestalt roughly means to whole or form. The whole is greater than the sum of its parts. In order to interpret what we receive through our senses, we attempt to organize this information into certain groups. So basically perception का बहुत सारा काम जो है वो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है. गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में 3 बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जो कि थे मैक्स वर्डाइमर, कूट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर. इन तीनों की कंट्रीब्यूशन से उन्होंने, जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ परसेप्शन. एंड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज वट एवर वी परसीव अकॉर्डिंग टू दीज लॉज ओनली. हम जो भी चीज परसीव करते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म को परसीव करते हैं, हम इसी के बेसिस पे, इन्हीं लॉज के बेसिस के ऊपर परसीव करते हैं जो भी हम आगे पीछे परसीव करें या जिन भी चीजों को हम देख रहे हैं. एंड हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि हम हर चीज को सिंप्लीफाई वे में देखें, उसको एक ऑर्गेनाइज, एक कोहेरेंट फॉर्म में देखें और तब उसको हम परसीव करें. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्रेग्नांस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, अगर आप कोई गाना सीखने लगे हैं तो आप उस गाने को कैसे सीखेंगे? आप उस गाने को
तोड़ तोड़ के सीखेंगे नहीं, पहले आप पूरा गाना सुनेंगे, उसके बाद आप उसको सीखना शुरू करेंगे, पहले एक स्टैंजा, फिर दूसरा स्टैंजा या दूसरा सेंटेंस। तो आप क्या करें, पहले एज अ होल उस चीज को आप परसीव करें, उसके बाद आप उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं। दिस इज द बेसिक लॉ जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इसी पे बेस्ड है। एंड वट एवर वी परसीव on the basis of that the whole is always greater than sum of its parts. So whatever we perceive it as a whole. सबसे पहले हम as a whole, आपके सामने कोई भी आपका फ्रेंड आया, कोई भी बंदा आया, तो आप सबसे पहले एज अ होल उसको देखते हो, बाद में आप देखते हो उसकी आंखें कैसी है, उसका नाक कैसा है, उसके लिप्स कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, पार्ट्स को बाद में देखते हैं। तो दिस इज ऑटोमेटिक। तो वट एवर वी परसीव, हम परसीव करते हैं सबसे पहले एज अ होल। सो दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, जिससे मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से हमको मिले गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन। And the word gestalt means form or configuration. Now, gestalt laws are they are based on law of pregnance. As I already told you कि हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी है कि हम जो भी चीज को परसीव करेंगे उसको एक सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, हम उसको डिसऑर्गेनाइज या असिमेट्रिकल वे में परसीव नहीं करते। हम हर चीज जिसको भी परसीव करने की कोशिश करेंगे, हम उसे सिंप्लीफाइड वे में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ये एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा कि ये ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, अलग अलग शेप्स। नो, पहली चीज जो आएगी जब किसी भी इंसान को आप पूछोगे आपने क्या परसीव किया इस फिगर को देख के, तो दे विल से कि एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। सो अ स्टिमुलस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू एज गुड अ फिगर एज पॉसिबल, सिमेट्रिकल, सिंपल एंड रेगुलर। द फिगर अपीयर्स टू द आई एज अ स्क्वायर overlapping triangle, not a combination of several complicated shapes. तो हमारा ब्रेन जो है किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, हमारा ब्रेन कोशिश ये करता है कि जो भी चीज परसीव हो वो अनकॉम्प्लिकेटेड, इजी, सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड वे में परसीव हो। फाइन। So there are certain laws of perception which we will be discussing. The first law is जिसको हम फिगर ग्राउंड कहते हैं, और सिर्फ यही एक लॉ है जो कि एडगर र्यूबिन ने दिया था। बाकी जितने भी लॉज हैं वो मैक्स वर्डाइमर, कर्ट कोफका और वुल्फगैंग कोहलर ने दिए थे। नाउ व्हेनेवर यू एंटर अ रूम, अ फैमिलियर रूम, आप कहीं पे भी ऐसे फैमिलियर रूम में एंटर होते हैं, तो जो भी हमारी परसेप्शन होती है वो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। आप वॉल्स पे देखते हो बहुत सारी चीजें टंगी हुई हैं, जैसे कैलेंडर है, वॉल पेंटिंग्स हैं। तो जब आप परसीव करते हो तो जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो, या कोई हैंगिंग्स टंगी हुई हैं, या बल्ब्स हैं, या ट्यूब लाइट्स हैं, वो एज अ फिगर वहां पे दिखाई देती हैं, और जो पीछे का एरिया है वॉल्स, वो एक बैकग्राउंड दिखाई देता है। दिस इज नोन एज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। एज यू कैन सी, ये हमारा विजुअल परसेप्शन में है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हॉर्सेस हैं, हॉर्स राइडर्स हैं। तो आपकी परसेप्शन जो है वो आपको ये बताएगी कि एक इंटरलॉकिंग फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है। आपकी परसेप्शन क्या है कि पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये वाइट ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा और आगे घोड़े दिखेंगे। हो सकता है कि आपको, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आपका मतलब आपकी परसेप्शन अगर ये कहती है कि व्हाइट को मुझे बैकग्राउंड लेना है, तो आपको ब्लैक घोड़े दिखने लग पड़ेंगे। दिस इज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, बेसिकली दिस इज फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। सी योर परसेप्शन, अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये बीच में वास भी दिखेगा आपको, और अगर आपको परसेप्शन अगर अपनी चेंज करनी है तो आपको हो सकता है ये 2 ह्यूमन फेसेस भी दिखे, दो चीजें इकट्ठे नहीं दिखेंगी। सो बेसिकली फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप सेज दैट द फिगर जो है इट स्टैंड्स आउट ऑफ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिसीड्स। ठीक है, बैकग्राउंड कहीं पीछे की तरफ आता है। तो आपकी परसेप्शन है, अगर आपने वास को बैकग्राउंड करना है, ह्यूमन फेसेस को फिगर करना है, या फिर ह्यूमन फेसेस को फिगर करना है और वास को आपने बैकग्राउंड करना है। सो दिस इज योर परसेप्शन, आप कैसे उस चीज को परसीव करोगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी फिगर होती है हमेशा वो उसके कॉन्टोर्स डिफाइंड होते हैं एंड इट स्टैंड्स आउट। उसके फीचर्स जो है वो प्रॉपर, तभी हम उसको फिगर कहते हैं, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो होता है वो मोस्टली सिमिलर नेचर का होता है, या सेमनेस जैसे होता है उस कैरेक्टरिस्टिक पे वो बेस होता है। उसके बेसिस के ऊपर हम फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप को परसीव करते हैं। सो फिगर सीन एज द फोरग्राउंड, ग्राउंड सीन एज द बैकग्राउंड, कॉन्टोर्स बिलोंग टू द फिगर। कॉन्टोर्स मतलब उसकी जो शेप है, उसका जो साइज, जो शेप बन रही है, उसके कॉन्टोर्स या उसकी बॉर्डर्स जो हैं, उनकी एजेस या बॉर्डर्स वो प्रॉपरली डिफाइंड है। दैट इज वाई हम उसको फिगर कंसीडर करें। सो इट इज योर परसेप्शन, आप किस चीज को फिगर कंसीडर करो या किस चीज को आप बैकग्राउंड कंसीडर करो।
Then comes the first law of perception, that is law of closure. So as we can see, there are some circles. यहाँ पे सर्कल्स हैं जिनके बीच में कुछ गैप्स दिए हुए हैं, लाइंस दी हुई हैं, जो कि गैप्स हैं बेसिकली. अब इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक फिगर बन के आ रही है. 1 2 3 4 5 6. तो बेसिकली शायद ये अगर आपको दिख रहा है तो एक शेप दिखाई दे रही है. तो क्या है ये कि हमारी जो रेटिना पे बन रही है इमेज, दैट इज फाइन कि अलग 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 दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी परसेप्शन जो है वो इस इमेज को क्लोज करने की कोशिश कर रही है, कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, और हमको ये एक जो है फिगर दिखाई दे रही है उसके बीच में. ये जो स्पेसेस आपको दिखाई दे रही है, ये एक बेसिकली दिस इज नोन एज लॉ ऑफ क्लोजर. वी ट्राई टू क्लोज इट. फाइन. दिस इज बिकॉज हम ऑर्गेनाइज वे में किसी चीज को देखना चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइज वे में किसी चीज को परसीव करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन. तो वी हैव, एज वी सी दैट हमारे पास में अगर हम देखें ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन और डी लाइन है. तो दिस इज द लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूएशन. ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन आइदर अ स्ट्रेट लाइन और अ स्मूथ कर्व टेंड टू बी सीन एज अ यूनिट. सो दे टेंड टू बी सीन एज अ यूनिट. ये चार अलग लाइंस हमको नहीं, हम इसको परसीव करेंगे, लेकिन सेम परसीव करेंगे कि ये दो अलग लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड हम इनको स्मूथ परसीव करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूटी में है. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. तो हमारी हम whatever things which are similar to us, तो हम उनको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं. ये हमारा एक रूल है हमारी परसेप्शन का कि जो चीजें सिमिलर है वो हमारे ग्रुप में होंगी. फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल्स और ये स्क्वेयर्स जो है, ये सर्कल का अलग ग्रुप है, स्क्वेयर का अलग ग्रुप हम परसीव करेंगे. मतलब ये हम सर्कल स्क्वेयर का ग्रुप नहीं परसीव करेंगे. जो हमें सेम चीजें दिखती हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं. देन इज प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस. जो चीजें हमें पास लगती हैं हम उनको ग्रुप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, हम कह सकते हैं कि ये 6 जो हैं कॉलम्स हैं जो कि सर्कल्स जिसमें हैं, या 6 लाइंस हैं सर्कल्स वाली. हम इनको एक नहीं कंसीडर करेंगे, हमें जो चीजें पास लगती हैं हम उनको ग्रुप बना देते हैं. दिस इज आवर परसेप्शन, दिस इज हाउ वी परसीव द थिंग्स. उसी तरीके से अगर आपने ये ब्रैकेट्स देखे हैं तो इसे लॉ सिमिट्री कहते हैं. एंड हम कभी भी इस ब्रैकेट को अलग नहीं देखेंगे. दीज आर कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. तो लॉ ऑफ सिमिट्री एज फॉर्मिंग मिरर इमेजेस अबाउट देयर सेंटर. वट एवर वी परसीव इट एज अ होल. कभी भी हम इसको या इसको कर्ली अकेले नहीं देखेंगे. वी ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट. ठीक है. तो हम इसको परसीव, अगर हम इन दो को देख रहे हैं तो हमें पता है ये 3 अलग तरह के ब्रैकेट्स हैं, ये नहीं कि ये कोई 6 अलग चीजें हैं. ठीक है. तो हम इनको ग्रुप कर देते हैं कि ये 3 अलग तरह के ब्रैकेट्स हैं. बिकॉज जो भी चीज सिमेट्रिकल होती है हमारे ब्रेन जो है उसको एक कोहेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है. सो दीज आर द लॉज ऑफ परसेप्शन. नेक्स्ट कम्स एग्नोसिया. So what is agnosia? Basically, agnosia is the inability to process sensory information. There is no problem in the brain, but हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडीज हुई हैं वो हुई हैं विजुअल एग्नोसिया पे, विजुअल डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन. सो सेंस तो हो रही हैं चीजें बट परसीव नहीं कर पा रहे. तो inability of a person to process and perceive stimuli on one side of the body or environment, where that inability is not due to lack of sensation. We are sensing the things, but we are not able to perceive what it is. We are not able to attach meaning to that sensation. As I already told you कि क्या होती है perception? It is the way we attach meaning to sensation. तो हमारे पास है विजुअल एग्नोसिया. विजुअल एग्नोसिया में है अपर्सेप्टिव विजुअल एग्नोसिया, जिसके जो symptoms हैं वो है the patient is cannot recognize anything by shape, cannot copy drawings, and often involves prosopagnosia. Prosopagnosia होती है inability to identify human faces basically. और ये भी परसेप्शन का एक एग्नोसिया या डिसऑर्डर है. तो जो भी परसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको हम एग्नोसिया बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज एसोसिएटिव विजुअल एग्नोसिया. द पेशेंट हैविंग दिस एसोसिएटिव विजुअल एग्नोसिया कैन कॉपी बट दे आर अनअवेयर व्हाट इट इज. कॉपी तो कर लेंगे चीज को, जैसे कि आउल की फोटो है तो आउल को कॉपी कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने आउल बनाया. दे आर नॉट एबल टू अटैच मीनिंग टू इट. सो डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग विजुअल इनटू वर्ड्स. जो विजुअल चीजें हैं उनको वर्ड्स में लाना, कि इमेज है तो आप बताओ आपने किस चीज की इमेज बनाई है, उसको बनाने में उनको प्रॉब्लम होगी. दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट.
देन देर आर सम अदर एग्नोजिया जो हमारे हैं. एक है प्रोसेप एग्नोजिया, जैसे मैंने बोला आपको कि इम्पेयरमेंट इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिलियर फेसेस. मतलब अगर आपकी फैमिलियर फेसेस है, जैसे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन, आप नहीं पहचान पाओगे, आप परसीव ही नहीं कर पाओगे, वो आपको हर दिन एक नए तरीके से ही दिखेगा. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मेमोरी का कोई डिसफंक्शन है, ये परसेप्शन की प्रॉब्लम है. देन इज विजुअल ऑब्जेक्ट एग्नोजिया. ऑब्जेक्ट्स दे सी डू नॉट मीन एनीथिंग टू देम. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं गॉगल्स पकड़ाऊंगी या कोई ऐनक पकड़ाऊंगी, स्पेक्टिकल्स, आप बोलोगे कि हाँ ये दो जो है राउंडेड कुछ चीज है, इसको वायर को राउंड किया हुआ है, फ्रेम है कुछ, बट आप सेंस तो कर पा रहे हो, लेकिन आप उसके साथ आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो ऐनक है. सो दिस इज विजुअल ऑब्जेक्ट इग्नोजिया. ऑब्जेक्ट्स जो भी आप देखोगे वो सेंस तो आप कर रहे हो, लेकिन उनके साथ आप मीनिंग अटैच नहीं कर पा रहे. एंड नेक्स्ट इज साइमल्टेग्नोजिया. इनएबिलिटी टू पे अटेंशन टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम. एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा आप जो है, जैसे रिकॉग्निशन टेस्ट होते हैं, या आपको बोलते हैं जैसे एक ट्रे है उसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, और आपको बोला जाता है कि आपने ये देख लिया, अब आप बताओ कि उसमें क्या सामान था. तो जिनकी परसेप्शंस नॉर्मल है वो कम से कम 4-5 चीजें तो बोल ही लेंगे कि सीजर पड़ी थी या कॉपी पड़ी थी या रबर पड़ा था. लेकिन जिनको साइमल्टेनियस की प्रॉब्लम है वो शायद सिर्फ एक ही चीज को ही परसीव कर पाएंगे, कि वो बोलेंगे सिर्फ सिजर पड़ा. तो दीज आर सम ऑफ दी एग्नोजिया जिनकी जो की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी परसेप्शन में. सो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि परसेप्शन में कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं. So this was all about perception. We did laws of perception. We did what is depth perception. We did uh, perceptual constancy, and then I defined few of the agnosias to you. Thank you.